Good morning, good morning, good morning, students. From today, we are going to start with the practical part, and accounting standard part is now over. And students, now it's really very simple as compared to accounting standards. Accounting for employee stock option plan is your chapter number 3, and we are starting with this chapter. Friends, before starting ESOP, now in 100 pages book, I already told you to maintain 2 types of notebook. One is 100 pages, one is 400 pages, and this will help you not only for my subject, it will helpful for all other subjects. But from today, now for other topics, I will not be there. So it's okay, but you should adopt the same strategy. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नोटबुक ही सेपरेट रखने को बोला था मैंने आपको. अभी आज से आप लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये थियरी जो मैं लिख के दूंगा, तो उसकी कॉन्सेप्ट बुक ये अलग से रखो. It's very simple chapter. Before starting any chapter, first you ask to yourself, why this chapter? एक ही मिनट बेटा. क्या हो गया? Okay. Before starting this chapter, एक ही मिनट, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है. Employee stock option plan is a chapter where you are giving options to your employees. Sir, option means what? Now see, if I want to keep you happy, I will always, or suppose if you are my employee, I'm giving you regular monthly basis पे salary. Don't worry कि हम लोग आपको salary दे रहे हैं. But apart from salary, if I give you shares of my company, definitely you will be happy. I'm not only the salaried person, I'm also shareholder of the company. But I'm giving some conditions. I'm putting some conditions. And these conditions are like, number one, you have to retain, you cannot leave my company for next 3 years. So next 3 years आप मेरी कंपनी को छोड़ नहीं सकते हो. ये कंडीशन मैंने आपके ऊपर डाल दिया. ठीक है. दूसरा, मैंने आपको बोल दिया कि भाई, एक ही मिनट, ओके. मैंने आपको बोल दिया कि you just do not have to continue with my company, but just this is one of the conditions. Second condition, if you achieve the target of rupees, my share price is rupees 600, then only you'll get the share. Third one, if you achieve target of turnover of rupees 1 crore, 2 crore, 5 crore, 10 crore, then only you'll get the share. So there are different targets. Number one, you will be in my company for next 5 years. आप मेरे कंपनी में नेक्स्ट 5 years तक क्या रहने वाले हो?
सर्विस में यार गड़बड़ हो गया यार, क्लोज ही नहीं हो रहा है। एक ही मिनट। हाँ, एक ही मिनट बच्चों। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड टिल नाउ। So you have to be in my company for next 5 years, 3 years. It is called as a service condition. क्या बोलते हैं इसको? Service condition. Then second condition is that कि आप मेरे कंपनी का परफॉर्मेंस कंडीशन. So there are two types of condition: service condition and performance condition. Performance condition, what it talks about, कि आप मेरे कंपनी में इतना टारगेट अचीव करोगे, which is non-market related. And second one is a market related. सेकंड वन क्या होगा बेटा? मार्केट रिलेटेड. मींस मेरा शेयर प्राइस इतना टच हुआ, देन ओनली यू आर गोइंग टू रिसीव द शेयर फ्रॉम मी. यू विल से सर व्हाई आई विल परचेस शेयर फ्रॉम योर कंपनी. आई विल टेल यू, इन मार्केट if the share price is rupees 100 or 150, I will give you at 70 rupees. So 150 is a market price, but I am giving you share at 70 rupees. So out of pocket of company is 80 rupees. कंपनी के जेब से कितना जाएगा? कंपनी जेब से 80 रुपया जाएगा. सो बेटा 80 रुपीज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी. यस सर, यस सर, समझ में आया कि ईसॉप का मतलब क्या है. एक बार हिंदी में समझ लो. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पहले समझ लीजिए. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपके मेरे कंपनी के शेयर्स देना चाहता हूं. आप मेरे कंपनी के एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय है, आप सिर्फ एम्प्लॉय पे सीमित नहीं रहोगे. आपको ट्रेन किया है मैंने. आपको मुझे रोकना है. अभी रोकना है ये बट ऑब्वियस मैं टर्नओवर होने के लिए नहीं देखूंगा. ट्रेन एम्प्लॉयज को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है. आइदर मैं आपको खुश रखूंगा क्योंकि आपने मेरी कंपनी की तरक्की की है, तो मैं आपको मेरे कंपनी के शेयर्स दे दूंगा. एम्प्लॉय है भाई, सैलरी को तो सिर्फ नहीं दे के चलेगा. कल उठ के वो एक जगह पे आपके एक थोड़े सर्टन ईयर्स के बाद वो आपके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं. तो आप उनको क्या बोलोगे कि आपको मेरे कंपनी में रहना है. आप वो बोल रहे सर हम लोग रहेंगे, पर हम लोगों को ऑप्शंस चाहिए. आप हमें कंपल्शन नहीं कर सकते हो. तो मैंने उनको क्या बोला, आप नेक्स्ट 3 साल तक मेरे कंपनी में रहोगे, तो 3 साल बाद मैं 100 रुपए का जो शेयर है ना, और 150 रुपए का शेयर है, 150 रुपीज का शेयर है, मैं आपको दे दूंगा. कितने रुपीज पे? 150 रुपीज का शेयर मैं आपको दे दूंगा 80 रुपए में. कितने में दे दूंगा बेटा? 80 रुपए में मैं आपको देने वाला हूं. आप बोले सर ठीक है. आपने बोल दिया ठीक है, 80 रुपए में देना है. एक ही मिनट है बेटा. हाँ जी. तो 80 रुपीज में मैं जब आपको शेयर दूंगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईसॉप. पर 3 साल बाद, अभी सिर्फ 3 साल बाद आप सर्विस कंडीशन नहीं बोल सकते. देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशन. आप बोलोगे सर आप मेरे कंपनी के साथ साथ आप क्या करो, आप सिर्फ मेरे कंपनी में परफॉर्मेंस भी देखो. सर्विस कंडीशन के साथ साथ परफॉर्मेंस कंडीशन मतलब क्या? मैं आपको बोलूंगा कि मेरे कंपनी का टारगेट इतना अचीव करना है आपको.
कितना अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है आपको टर्नओवर बेसिस पे मिनिमम 10 करोड़ रुपया। अभी कितना चल रहा है, 7 करोड़। शेयर मिलेगा। शेयर कब मिलेगा, जो यदि आपने मेरे कंपनी का टारगेट 10 करोड़ पे अचीव किया तो। अभी ये एम्प्लॉयज कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। और दूसरा, मैंने उनको बोल दिया मार्केट से रिलेटेड कि मेरे कंपनी का शेयर प्राइस 700 रुपए पे गया ना तो तुम्हें शेयर मिलेगा। तो एम्प्लॉय ये ऑप्शन ले रहे हैं। अभी ऑप्शन उनको कब मिलेगा, अभी दो टाइप मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ यस, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ESOP. To keep happy your employee and to retain them in the organization. So when you are issuing that option, it's called as grant date. क्या बोलते हैं, grant date. So grant date is the date on which you are giving the option to your employees. Option means it is a right of employee, but this is not the obligation of employee. सर उसका हक है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या उसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये जवाबदार नहीं है कि भाई आपको लेना ही लेना है। नो भाई, इतना ध्यान में रखो, इट्स अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। यस सर, अंडरस्टूड। नाउ वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग मीन्स पुटिंग कंडीशन। सो वेस्टिंग मतलब क्या होता है, इट इज अ कंडीशन ऑन एम्प्लॉयज. There are two types of conditions. One is a service condition and one is a performance condition. Performance condition again divided in two parts, market and non-market. In service condition, vesting period is fixed vesting period. Remember the sentence. परफॉर्मेंस कंडीशन में वेस्टिंग पीरियड इज नॉट फिक्स. इट्स लाइक योर CA एग्जाम. यू कैन पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यू कैन पास इन द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या छोड़ दोगे. सो परफॉर्मेंस वेस्टिंग पीरियड इज नेवर फिक्स. इन परफॉर्मेंस वेस्टिंग पीरियड इज नेवर फिक्स. सर्विस कंडीशन में वेस्टिंग पीरियड इज फिक्स. सर दिमाग में रखिए. सो न्यू वर्ड्स. So new words. What are the new words? Grant date. When option you put before employees. So this is a date on which you are giving option. From that date, your conditional period is starting, which is called as vesting period. क्या बोलते हैं उसको? Vesting period. Now condition is like you have to be in my company for next 3 years. Service condition 3 years is fixed. Performance condition where vesting period is not fixed. Why? Because first you are going to achieve that target. Target को achieve कर, and then only you will get the share. Okay, so this is the option. It is a right बट नॉट दी ऑब्लिगेशन. ये एम्प्लॉय को आप लोग बोल नहीं सकते भाई एम्प्लॉय तुझे ये लेना ही लेना है. नहीं भाई, ये आपके पास ऑप्शन है. आफ्टर वेस्टिंग पीरियड एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट्स. एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट्स एंड एम्प्लॉय में exercise the option or it may lapse. Option में lapse. Employee won't exercise. नहीं लेना है भाई, नहीं चाहिए. Okay, so vesting period के बाद, after vesting period, exercise period will start. Exercise means employee is going to exercise it. That option he wants, he will pay, he won't pay. So what he will pay? He will pay rupees 80. And what is the kharcha? 70 is a kharcha of company, expenditure of the company, and market price is 150. Sir, this is called as exercise price. EP, exercise price.
70 rupees is the expenses. 150 rupees is a market price. Exercise price, 70 rupees is a expenses which is called as intrinsic value. क्या बोलते हैं इसको? Intrinsic value, or you may go by fair value option. Now, fair value, how to calculate? It is using some Black and Scholes model. You will calculate at the CA final level. Don't worry, Black and Scholes model, how you are going to calculate fair value of the option. So, exercise period, exercise price, which is getting from employee. 70 rupees is the expenses. That is called as intrinsic value. And 150 is called as market price. So exercise price मतलब 80 रुपया जो कंपनी को मिलने वाला है from employee. जो out of pocket intrinsic value. 150 market price. एकदम simple છે. So accounting for employee stock option plan. Option is a right but not an obligation. Vesting conditions. Vesting period. So first, a date on which you put the option is a grant date. Vesting period, there are two types of vesting period. One is a service condition. Vesting means condition. You have to attend this, you have to be in my company for next 3 years is a service condition. You have to achieve that target. It's called as performance condition. Performance condition might be market, might be non-market. Market means share price udhar chala gaya. Non-market matlab itna turnover achieve karna hai. When vesting period ends, your exercise period starts. Suppose in vesting period, if employee leaves your company, he won't get it. But in case of exercise, he has a right but not obligation. So he may exercise, he may lapse. And after that, he will pay us whatever the value is called as exercise price. Whatever company is paying from the pocket is called as intrinsic value, or it might be you record at a fair value. And last one is called as a market price. Khatam ho gaya. 150 is a market price. Whatever terms you understood, please ये आपको लिखना है. क्या क्या लिखना है? ग्रैंड डेट लिखना है, वेस्टिंग लिखना है, एक्सरसाइज पीरियड के बारे में लिखना है, एक्सरसाइज प्राइस के बारे में लिखना है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में लिखना है, एंड मार्केट प्राइस के बारे में लिखना है. जल्दी से आपको लिखना है. नेक्स्ट 3 मिनट्स में आपको दे रहा हूं फॉर राइटिंग ऑल दिस. वट एवर यू अंडरस्टूड, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से लिखो.
कुछ आंसर्स पढ़ते हैं, कुछ आंसर्स पढ़ते हैं बेटा। पहला आंसर था, पहला आंसर था सुनील कुमार, exercise is a price which is payable by the employee. Granted is when employee and enterprise agree to ESOP. ठीक है, when option is kept before employees. Very simple language. ESOP is the intrinsic value में is the difference between exercise price and market price. Very good. Vesting period is a conditional period. When the ESOP is हाँ, it is a condition. Yes, ठीक है. Sahu, exercise period is that when employee is given the time to take the option to buy the stock. And grant date is a date of which enterprise and employees agree to ESOP. Intrinsic value is the difference between fair value and the fair value नहीं बोलेंगे बेटा. Intrinsic value is a difference between exercise price and market price. Raju Kumar. Okay. And which is required to pay the buy to the share. Vesting period means a period which you have to put the conditions. पूरा तो टाइप नहीं किया है सबने. ठीक है, अभी कुछ बहुत कम बच्चे टाइप करते, इतना इच्छा नहीं होती सबकी. ठीक है, जिन्होंने भी टाइप किया इट्स ओके, नहीं टाइप किया तो भी ओके. One point you have to keep it in your mind that now why this chapter, because when company is paying out of its pocket, कंपनी जब अपने पॉकेट में से वो पैसा पेमेंट कर रहा है 70 rupees. Now how to record it 70 rupees, and for that this chapter is there. ESOP, this chapter, it talks about, it's not only you are telling how to account it for the ESOP, but how to divide your expenditure over the period is called as ESOP, Employee Stock Option Plan. Employee Stock Option Plan आपको क्या सिखाएगा? तो ये चैप्टर आपको सिखाएगा how to divide. So if you want to understand how to do accounting, how to record expenses, over the period is called as ESOP. जो expenses आपके पॉकेट में से जाने वाले, which is called as intrinsic value, or it might be a fair value. You have two types of accountings. You go by intrinsic value or you go by fair value option. I hope everyone is clear with this topic का logic. Okay. So topic का logic is very simple. जिया पटेल, बहुत बढ़िया बेटा. किरण जी, yes, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप. One by one टाइप कर रहे हो. At this age, typing is, I know, is difficult. आप मुझे भी बोलोगे कि टाइप करो तो मैं तो बहुत लेजी हूँ. मुझे टाइपिंग करना बहुत बुरा लगता है. ओके, हाँ, किसके ऊपर? मोबाइल के ऊपर. ये लैपटॉप के ऊपर बोलो, मैं जल्दी जल्दी टाइप कर दूंगा. So friends, I hope you got the logic. Yes or no? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आपको पूरा टॉपिक का लॉजिक समझ में आया है या नहीं आया है. ऑप्शन प्लान का एक्सपेंडिचर हमें रिकॉर्ड करना सीखना है. एक्सपेंडिचर कैसे रिकॉर्ड करना है? वो 70 रुपए जो है ना, वो ओवर द पीरियड हमें डिवाइड करना है. ओवर द पीरियड कैसे डिवाइड करना है, इसीलिए तो हमें ये टॉपिक देखना है. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो. आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज के हमारे मोबाइल ऐप पे आ जाओ. जितने भी बच्चे हैं जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आपको एक रिक्वेस्ट है, आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप पे आ जाइए और हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देखते रहिए. ओके, लेक्चर्स को देखना भी है और सीखना भी है उसमें से. फर्स्ट थिंग, यस यस यस, चलेगा. यस, हिमांशु बोल रहे सर लॉजिक तो समझ में आ गया. वेरी गुड बेटा हिमांशु. किरण जी, आपको तो सब ये तो. कोमल भी बोल रही है यस सर, समझ में आया. सुनील कुमार भी बोल रहा है, दर्शन भी बोल रहा है. और आज किसी SRO student Mansa ji has given me a big note. Yes. कृति बोल रही है सर एक क्विक रिवीजन कर दो. एक बार हिंदी में बता देता हूँ. जिस दिन हमने ऑप्शन को रखा रहेगा उसको बोलते हैं ग्रांडेड. ग्रांडेड मतलब जिस दिन आपने ऑप्शन को रखा रहेगा. वेस्टिंग कंडीशन मतलब अभी ये एम्प्लॉय के सामने हम लोग ऑप्शन रखते हैं तो एम्प्लॉय को कुछ तो कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो कंडीशन हम उसके ऊपर डालते हैं उसको बोलते हैं वेस्टिंग. वो कंडीशन को बोलते हैं वेस्टिंग. और वेस्टिंग पीरियड जो होता है वो जितना कंडीशन का पीरियड होता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड. एक ध्यान में रखना, सर्विस कंडीशन में ये फिक्स होता है. सर्विस कंडीशन मतलब तू मेरे पास 3 साल तक रहेगा तो ही तुझे ये ऑप्शन मिलेगा और फिक्स होगा. परफॉर्मेंस कंडीशन में ये फिक्स
नहीं होता है मार्केट या नॉन मार्केट बेस। मार्केट बेस में क्या होगा, मार्केट बेस में इतना याद रखिए, मार्केट बेस में हम लोग उसको क्या करते हैं बेटा कि इतना शेयर प्राइस इतना पहुंचाया तो तुझे मिलेगा मेरे कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस कंडीशन में। नॉन मार्केट बेस्ड ये होने वाला है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इट्स ऑप्शन, राइट, इट इज ऑप्शन, मतलब कंपल्शन नॉट ऑब्लिगेशन, इतना ध्यान में रखिए। यस, मजा आ रहा है आप लोगों को? सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक बार क्विकली जो भी सिखाया उसको ओवरव्यू को देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन इज गिवन टू दी एम्प्लॉय, डायरेक्टर और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो ये परमानेंट एम्प्लॉय, इनको ऑप्शन दिया जाएगा। बाय कंपनी इज होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी भी हो सकता है आउटसाइड इंडिया, और एसोसिएट्स भी। ऑप्शन गिवन टू परचेस और सब्सक्राइब फॉर दी सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी। ये उसका लॉजिक है। 100 पेजेसच्या नोटबुकला 100 पेजेसच्या नोटबुकला हा स्क्रीनशॉट लिहायचा। ओके, 100 पेजेस के बुक में ये स्क्रीनशॉट लिखने का, यू हैव टू राइट दिस इन द 100 पेजेस बुक। तो ये स्क्रीनशॉट को आप जल्दी से जल्दी आपके 100 पेजेस के बुक में लिख लेना बाद में। तो अभी स्क्रीनशॉट लिख लो और बाद में यू कैन राइट इट। बढ़िया सर, एकदम मीनिंग समझ में आया, ऑप्शन समझ में आया। इट इज गिवन टू द ऑफिसर और डायरेक्टर्स और परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी सब्सिडियरी होल्डिंग एसोसिएट टू परचेस और सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट सेशन विल बी अ बायबैक। बायबैक के बाद हम लोग जाएंगे, 2 सेशन है मेरे पास बायबैक के। बायबैक के बाद आप लोगों से मैं लूंगा विदा। और यदि आप लोगों को ये लेक्चर्स अटेंड करने होंगे आगे के और या कंफर्टेबल इन हिंदी, तो आप फिर पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच में कांटेक्ट करके उनसे मेरे लेक्चर्स ले लेना बेटा। फिर आपको आगे के लेक्चर्स मेरे कंटिन्यू करने। तो अदरवाइज अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज के तो लेक्चर चल ही रहे, पर यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वहां से हिंदी में जिनको चाहिए होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। यहाँ पे कैसा होता है, पूरा इंग्लिश में बताना ही पड़ता है, वहां पे हिंदी में ही बताया जाएगा, इतना ध्यान में रखिए। तो जो भी बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है उधर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की ही ब्रांच है। ओके, तो यहां तक सबको समझ में आया होगा। नाउ ठीक है, अभी स्टार्टअप स्टेज में वगैरह ये ठीक है, अभी क्यों चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ग्रांट एंड ऑप्शन टू द एम्प्लॉय अंडर ESOP. Option means it's a right but not obligation. Screenshot number 2. Screenshot number 2. Option given to an employee under ESOP. The date on which you kept this option is called as grant date. And this is option, but it's right, but not an obligation to apply for the shares of the company at a predetermined price. एकदम 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 simple chase, sir. Vesting, it is the process by which employee gives the right to apply for the shares against the option granted by him. संकेत सर ने ये ऑलरेडी टर्म सिखा दिए हैं। स्क्रीनशॉट नंबर 3, स्क्रीनशॉट नंबर 3। Vesting period, it is a time period during which vesting of the option is granted to the employee. Screenshot number 4, screenshot number 4। Exercise period, apply for the share, screenshot number 5। ऑलरेडी सभी पीरियड ये एक्सप्लेन किए गए। व्हेन वेस्टिंग पीरियड
ends, your exercise price starts. Exercise price which is payable by the employee, screenshot number 6. हंड्रेड पेजेस के बुक में पूरा लिखना है आज आपको. ऐसे के 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं. ग्रेट. Intrinsic value, it is the difference between market value and exercise price. Screenshot number 7. It is the excess market price of the share over the exercise price. It's called as the intrinsic value. Fair value, it is a, हाँ जी, fair value से भी एक ऑप्शन होता है. Either you go for the intrinsic value or the fair value, both are correct. कौन सा हुआ था रे फेयर वैल्यू? स्क्रीनशॉट नंबर 8. ओके, बस हो गया. क्लासिफिकेशन ऑफ ईसॉप की कुछ जरूरत नहीं है बेटा एकदम डिटेल में जाने की. इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल, एट द एंड यू आर पेइंग कैश टू योर एम्प्लॉय. और इक्विटी सेटल मींस इक्विटी शेयर्स यू आर पेइंग और कॉम्बिनेशन. ये तो ऑलरेडी बता दिया. ये स्क्रीनशॉट नंबर 9 ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्रीनशॉट 9, वेस्टिंग कंडीशंस. वेस्टिंग कंडीशंस आर ऑफ 2 टाइप्स. बस खत्म होने को आया बेटा. Now we are going to do the start with the action part. So I hope you are now clear with this chapter. Service condition or performance condition. मार्केट को मत लिखना. हाँ जी, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट. थैंक यू. चैप्टर ओवर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन पार्ट्स. आ जाइए, आपके क्वेश्चंस को ओपन कर लीजिए, बता दूंगा. यस, आ जाइए, क्वेश्चंस को ओपन कीजिए, बता दूंगा. आ जाइए बेटा. कुछ है ही नहीं रही है टॉपिक में. सब कुछ एलिमिनेट होने वाला है. आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल गाइज. 1-2 दिन में अभी खत्म हो जाएगा और ये सब जाने वाला है आफ्टर सर्टेन डेज. दिस टॉपिक विल बी देयर. और इसके बाद आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे, अभी न्यू कोर्स में मैं मिलूंगा आप सबको. ओनली फाउंडेशन की लास्ट बैच मेरी चल रही है और हम लोग मिलेंगे अभी न्यू कोर्स में. आई होप आप न्यू कोर्स के लिए रुके मत, क्योंकि आप लोग पास होने वाले हो.
Okay, so you all are going to pass. So अभी मेरे सेशंस जो चालू होंगे बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ, ओनली फॉर वेटिंग फॉर न्यू कोर्स. न्यू कोर्स धमाकेदार रहने वाला है. तो बहुत से सारे स्टूडेंट्स मेरे न्यू कोर्स के लेक्चर्स भी देख रहे हैं अभी. तो ये टॉपिक आपको न्यू कोर्स में है और आप लोगों को ये मजा भी आया होगा ये कोर्स के टाइम पे. चलिए इस बार यस, चलो. So let's start. A company has its C. Now in this question, vesting period, write down, just note down it. Very important point. Vesting period and exercise period are in same year. So no employee stock option outstanding account. No employee stock option outstanding account. Okay. So बेटा एक चार्ट बना के दूंगा एंट्रीज का लास्ट में. नहीं तो एक काम करो, लिखो रफ पेजेस पे लिखो जर्नल एंट्रीज and you can fare it afterwards. In 100 pages book you have to write this, or 400 pages के book में you have to write all these answers. Journal entries, vesting period ये बीच में लिखना है, and exercise period are in same year, different years. No ESO outstanding account. ESO outstanding account. Entry is bank account debit. Employee will pay you IP. Employee compensation expense account debit, which is called as intrinsic value, to share capital face value, and to security premium excess value. Understand the logic. Write down. Bank account C. Vesting period is also 1 year, and your exercise period is also in that same year, matlab immediately within the same month. So here there is no question of outstanding account. ESO outstanding matlab employee stock option outstanding. What is ESO outstanding? ESO outstanding is employee stock option outstanding. And now employee compensation expense account. This is nominal account. This is liability. This is a personal account.
Okay, nominal account or personal account है. ESOP outstanding is a personal account और ये expenses is a nominal account. If exercise period is same, if vesting whatever you are paying from your pocket is your expenditure and that is the intrinsic value, उसको हम लोग intrinsic value बोलेंगे. To share capital is always at the face value and to security premium. So it's very simple, sir. And what is the second entry? Second entry is P&L चा debit ला to employee compensation expense account. It's very simple. Nothing is difficult in this question. But suppose if there are different years, okay, your exercise period is after vesting period, 3 years. So every year, you will pass entry, employee compensation expense account debit to एक salary to salary payable वैसा expenses to ESO outstanding. But remember this ESO outstanding, it will be shown under the head reserves and surplus. कहां पे बताया जाता है बैलेंस शीट में? Reserves and surplus. Why? Because it's a part of your employee are going to become shareholder बनने वाले, तो उनके लिए जो पैसा आप लोग साइड में निकाल कर रख रहे हो, एक्सपेंडिचर आप लोग जो क्लेम कर रहे हो, so that will be your part of shareholders fund. So reserve surplus, you cannot show it as share capital, so it has to be shown as a reserve surplus. Logic is very simple. बनाने वाले ने बहुत खुद बनाया कि कहां पे रिकॉर्ड करना है इसको, रिजर्व्स एंड सरप्लस में. अच्छा मौशी, समझ में आया पूरा? यस. सेकंड वन, एवरी ईयर P&L च्या डेबिट ला टू एम्प्लॉई कॉम्पेन्सेशन एक्सपेंस अकाउंट. हाँ जी सर, पूरा समझ गयो. एकदम इजी है सर, एकदम इजी. आई एम गेटिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट वेरी लॉजिकली. ICI में आपको पूरा लॉजिकली बता दिया. ओके, एवरी ईयर अंडरस्टूड. एंड when you are going to exercise it, you will not again record exercise period में bank account debit, and here you are not going to record employee compensation expenses. Here you are recording ESO outstanding debit. जो भी ऊपर आपने ESO outstanding को क्रेडिट किया था इतने साल, every year you are going to reverse it to equity share capital at face value and to security premium excess. बढ़िया सर, एकदम बढ़िया समझ में आ गया सर, एकदम इजीली समझ में आ गया. अच्छे, आप हमें ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया बता दिए, पूरा दिमाग में बैठ गया सर, पूरा दिमाग में बैठ गया सर, डायरेक्ट बैठ गया सर. एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESO आउटस्टैंडिंग, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस एक्सरसाइज किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल. Entries are over. You're getting these entries. I'm waiting only for, you should write all these entries.
once you got the logic behind it, so vesting period and exercise period are not in the same year. What you are going to record it? Employee compensation expenses account debit to is outstanding. Employee compensation expenses to include outstanding. Then P&L account debit to employee compensation expenses. Exercise period किया तो bank account debit is outstanding चा debit ला to equity share capital to security premium. You are getting all these entries correctly, sir. Nothing is difficult. Yes, any difficulty till now. जो भी difficulty होगी वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि एंट्रीज ओवर हो चुकी है. आप लोगों को पूरे एंट्रीज मैंने समझा दिए. वेस्टिंग पीरियड में क्या होएगा और क्या नहीं होएगा ये भी बता दिया. आई होप नाउ यू आर वेरी वेरी मच क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ESOP. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आपको समझ आए रहेंगे. अभी एक नया चैप्टर जो आपके मैंने झोली में डाल दिया है, एकदम अच्छे से आपको बता दिया ये कॉन्सेप्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है. एक्सरसाइज पे ये एंट्री जिसको समझ में आया, लाइव झिंगा लाला पूरा का पूरा समझ में आ चुका है. कुछ भी डिफिकल्टी इसमें नहीं रहेगा. वंस यू गॉट दी ऑल एंट्रीज, ये एंट्रीज जिसको समझ में आया तो कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं. ये एंट्रीज को एक बार याद कर लो बेटा जल्दी जल्दी. हो सकता है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो. टाइप करने से दिमाग में एंट्री बिना देखे टाइप करने की इच्छा रखो. सो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी टाइप कर दो. चलो यूट्यूब पे जो लोग बच्चे नहीं देख रहा है, ऐप पे देख रहा है बेटा, जो भी बच्चा ऐप पे देख रहा है फटाफट फटाफट. यस बेटा वेरी गुड. सो पैसा जो आएगा वो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, जो आपके जेब से जाएगा वो एक्सपेंसेस को डेबिट होगा. टू शेयर कैपिटल जो फेस वैल्यू से दिखेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आपने शेयर दे दिया है. यदि आप शेयर नहीं देते हो तो एक्सपेंसेस को बुक करोगे ओवर द पीरियड, उसको एंट्री करेंगे. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इज आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इज आउटस्टैंडिंग, P&L टू एक्सपेंस, P&L टू एक्सपेंस, P&L टू एक्सपेंस. एंट्री को आपने एवरी ईयर कर दिया. जिस दिन आपने एक्सरसाइज करवाया रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और यहाँ पे एक चीज मेरा देखना रहेगा बेटा, और जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं करवाए उनका क्या. वो एम्प्लॉय है पर वो नहीं करवाए. सर इसो आउटस्टैंडिंग तो वेस्ट नहीं जाएगा. सो इसकी एंट्री होगी इसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. बस ये एंट्री देना रहेगा था. इसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. जिस दिन आपका खर्चा ज्यादा दिखेगा क्या होगा उसका भी देखेंगे. सॉल्यूशन तो सबका दूंगा. इसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. सभी एंट्रीज हो चुके हैं. एक बार दो बार वापस वापस बोलते रहिए तो अपना आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. यदि वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड ये सेम आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा. इसो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस डेबिट होगा. इसो आउटस्टैंडिंग ओपन ही नहीं होगा. टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से दिखेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम. P&L अकाउंट के डेबिट में टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस. एकदम सिंपल है, लाइव जिंगा लाला है. यहाँ पे मैंने सेकंड टाइम पे बताया कि इधर क्या होएगा, इधर डिफरेंट ईयर्स होएगा तो एक्सपेंसेस को आपको बुक करना है. एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इसो आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस टू इसो आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस टू इसो आउटस्टैंडिंग, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस. उसके बाद नॉट एक्सरसाइज करवाया, सॉरी एक्सरसाइज करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा. एक्सपेंस को वापस डेबिट नहीं देना है. इस आउटस्टैंडिंग को कैंसिल करना है. इस आउटस्टैंडिंग को डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. और इस आउटस्टैंडिंग में जो नॉट एक्सरसाइज किया वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा. इस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. खत्म हो गया भाई. इतना सिंपल कौन करता है बॉस. संकेत सर ने पूरा सिंप्लीफाइड कर चुके हो. यस यस हिमांशु पाठक जी, मैंने आपके एंट्रीज का आंसर भी दे दिया. इफ लैप्स होता है तो इस आउटस्टैंडिंग में जो भी आंसर आपने दिया था नॉट एक्सरसाइज करवाया तो टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा. वेरी गुड. सुनील कुमार ने एंट्री लिखना चालू किया. और इन सेल ये सेम ये बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय. हाँ जी बेटा लिखो लिखो लिखो. लिखोगे तो सीखोगे बेटा. जल्दी जल्दी लिखो. कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहो. Journal entries are like a piece of cake for CA Sanket sir students. But obvious beta, if you are attached with me from the foundation course, now your basic is at कौन से लेवल पे होगा आपको भी पता है. Your basics. तो जो फाउंडेशन लेवल से मेरे पास पढ़ रहा है बच्चा वो कहाँ पे हो गया बेटा, वो तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा आपको. जर्नल एंट्रीज मतलब मक्खन है रे, मक्खन. बेसिक सबका इतना स्ट्रांग है जो फाउंडेशन से पढ़ रहा है.
एक कंपनी सेक्रेटरी के बच्चों की बैच ली बेटा मैंने थोड़े दिनों पहले। बिलीव मी, जीरो से हीरो कर दिया सबको, जीरो से हीरो। इतना डर था ना अकाउंट्स का, उनको ऐसा लगता है कंपनी सेक्रेटरी बच्चों को जैसे हमें लॉ का लगता है कि लॉ हमारे लिए एकदम यू नो हमारा मेन अकाउंट्स, इनकम टैक्स, वी आर एक्सपर्ट इन दैट। कंपनी लॉ में कौन इंटरेस्ट लेता है? वो बच्चा पहले 5 दिन तो इतना डरे अकाउंट्स ऐसा वैसा, सर अकाउंट्स तो बहुत डेंजर, हम लोगों ने 11 12 के बाद कभी अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं। और उसके बाद जब अकाउंट्स पढ़ना चालू किया नाउ, आफ्टर 20 days, वो लोग बोले अकाउंट्स इतना इजी होता है सर, हमने कभी लॉजिकल किया ही नहीं। खर्चा क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। मैं बोला भाई ये तो कमाल है ना, ये तो अकाउंट्स की कि आपको इतना इजी लगने लगेगा। 2 3 बच्चे बोले सर हम लोग सीए में एनरोल कर लेते हैं, हमें अकाउंट्स में मजा आने लगा है। बोला कर लो भाई, सिर्फ मजा आने से फायदा नहीं है, आपको लॉजिकली अप्लाई भी करते आना चाहिए। और एंट्रीज बहुत सिंपल है रे, आप रियल लाइफ में जाओगे ना, आप याद ही याद करोगे। जब आप लोग आफ्टर ये रियल लाइफ में जब जाने वाले हो आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप कर रहे हो उनको तो पता ही होगा कि हाँ भाई सर तो बहुत इजी वे में बता दें। और कुछ बच्चों को तो ऐसा लग जाएगा सर यू आर करेक्ट। हाँ जी, बच्चा लिख रहा है, बच्चा लिख रहा है। हो गया मेरा एडवांस अकाउंट्स का बैच, ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया है अभी। नाउ आई लेफ्ट विद ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो रहे गए थे, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग और पार्टनरशिप, चलो वो भी खत्म हो जाएगा। एडवांस अकाउंट्स अप टू 20 अगस्त का टारगेट है मेरा। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक रिविजन्स। रिविजन्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय चैनल, तो डोंट वरी, आपके रिविजन होंगे। वेरी गुड बेटा। स्वाति बोल रहे मैं तो मेरे जूनियर्स लोगों को आपके लॉजिक सिखाती रहती हूँ। वेरी गुड। सुनील कुमार बोलता है यस सर यू मेड इट वेरी इजी। एक्चुअली नाउ अकाउंट्स का पार्ट स्टार्टेड, ओके। एमलगमेशन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है अभी आपका जो आगे का होगा, इट्स रिलेटेड टू कंपनी। व्हाट यू आर स्टडिंग इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाउ। Okay, so now amalgamation, internal reconstruction, then you are going to see consolidation, liquidation, सभी अभी आप लोग मूव हो जाओगे कॉर्पोरेट पार्ट में। आए कॉर्पोरेट सीखने वाले हो भाई अभी, बढ़िया है। आगे का एडवांस अकाउंट्स मतलब अभी सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के वर्ल्ड से बुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ओके, ओके कोमल बेन, बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ यू नाउ अंडरस्टूड what are the entries. So sir, now can I start with problem part? हो गए 3 प्रॉब्लम से बेटा, हो गया टॉपिक खत्म, कुछ है ही नहीं है टॉपिक में। 3 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, वो भी समझ में आएगा, उसका भी एक शॉर्टकट दे दूंगा मैं। हाँ हिमांशु, बट वो थ्योरी 30 मार्क्स की थी। हिमांशु बोल रहा है आज लगने लगा सर आज कुछ तो अकाउंट्स पढ़ना शुरू किए। यस बेटा, नो आई नो, और मैं एंड हो गया अभी, मेरा पार्ट खत्म हो जाएगा। जैसे स्टार्ट तो हो गया था और मेरा पार्ट अभी बायबैक पे जाके रुक जाऊंगा। इस बार थ्योरी बताया, इंस्टीट्यूट ने दे दी थ्योरी इस बार कि सर आप ले लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थ्योरी पार्ट होने के बावजूद आई मेड इट सिंपल ना। यस, मिस तो करोगे थोड़ा।
क्या भूल जाओगे हिमांशु? एंट्रीज आर वेरी इजी सर, एंट्रीज आर वेरी इजी इजी। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 सर। हमारे लाइफ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। पहला क्वेश्चन आफ्टर सो मेनी डेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलू 1। मजा आ गया ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? सच बताइयो। ओके, ग्रुप 1 पूरा मेरे साथ बढ़ गए, आधा ग्रुप 2 पढ़ लिए मेरे साथ इस बार तो। और क्या चाहिए ऐसे ने, और क्या देना चाहिए बेटा आपको? A company has its share capital divided into shares of rupees 10 each on 1st April 2001. On 1st April 2001, what is going to happen, sir? It grants 10,000 employees options at rupees 40 and market price is 130. So जेब से कितना गया सर जी? rupees 90 is called as intrinsic value. Write down. Intrinsic value is 90. 40 is the exercise price and 130. 40 के ऊपर लिखो exercise price. The fair value is also 90. Either you go by intrinsic value option or fair value option. Now company has two options. Fair value, this is something calculations beta by Black and Scholes model. Okay, option का calculation होता है. Now how to calculate option का calculation that you are going to understand at final level. Okay, Black and Scholes model. क्या model का नाम है? Black and Scholes model. Black and Scholes. So ये भाई साहब थे जिन्होंने ऑप्शन का वैल्यू निकालना सिखाया था। ओके, yes, so 90 rupees. The options are to be exercised between 15 March and 31st March 2002 in the same year, sir. In the same year. The employees are only options कितने opt किए उन्होंने? 9,500. Sir, 10,000 is to confuse us. 10,000 is to confuse us. कुछ यूज नहीं है। 9,500 only shares and बाकी के लैप्स हो गए, but this is a first year, so no ESO outstanding. लैप्स हुए तो no ESO outstanding, so no entry. No ESO outstanding, therefore no entry for lapse. No entry for lapse. ESO outstanding होता तो ESO outstanding to general reserve ने किया रहता, but no ESO outstanding, so no entry for lapse here. Okay. सुनील कुमार बोल रहे we are not going to forget you, sir. राजू कुमार बोल रहे सर आप थ्योरी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इसलिए ऐसे को भी पता है इसलिए आपको भी दिया थ्योरी। यू आर द बेस्ट सर फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। थैंक यू बेटा। दर्शन बोल रहा है सर बेयर टेक्स्ट S29 पढ़ने के बाद तो लगने लगा वी आर प्रोफेशनल्स। अरे वाह रे वाह मेरे शेर, प्रोफेशनल लगने लगा तुझे, वेरी गुड। चलो सो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री क्या होने वाली है? देखो एंट्री क्या होगी, वेरी सिंपल। एंट्री क्या होने वाली है? बँकेच्या डेबिटला। पर मैंने एक ऑब्जर्व किया ग्रुप 1 में आप लोग एकदम सीरियस रहते हैं, ग्रुप 2 में ऐसा डाउन हो जाते हैं, ऐसा डाउन 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 डाउन। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता इतना डाउन कैसे हो जाते हो आप लोग ग्रुप 2 में, क्या रीजन है भाई? बँक अकाउंटच्या डेबिटला, बँक अकाउंटच्या डेबिटला हाउ मच दे आर पेइंग बेटा? 40 rupees. थिंक फॉर वन शेयर, थिंक फॉर वन शेयर. What you are paying from your pocket is 90. Okay, so bank account debit 40, your expenditure is 90. What is the expenditure? Intrinsic value or you go by fair value? Both are same here. Equity share capital is 10 and to security premium is 90 plus 40 minus 10 is 120 and multiplied by 9,500 shares. So it should be ulta likhna hai aapko.
ऐसे ने जैसा किया नहीं, ऑलवेज थिंक फॉर 1 शेयर एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय 9,500 शेयर्स. खत्म हो गया रे, खत्म हो गया. एनीथिंग डिफिकल्टी इन दिस narration? Being ESOP, allotment of shares. Don't write this 9,500 shares obtain each at a premium of 120. Being allotment of employees stock options. Being allotment of stock options to employees. Being allotment of stock options to employees. तो employees लिखना है. Being allotment of stock options to employees. Or being ESOP allotted. Simple. Being expenses transferred. Being transfer of expenses. Y to P&L. समझ में आता है ना वो. P&L to employee compensation expenses. Easy है? कर लोगे? पहला एंट्री ओवर. अरे कर लोगे क्या? पहला एंट्री कर लोगे, लिख के दू? अरे मामा माउशिया, करोगे क्या? क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो बेटा. लिख के दू या कर लोगे? चलो नेक्स्ट. वेरी गुड. इल्यूटिव. पढ़ो, पढ़ लो जरा. एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स. भाई देखने वाले बच्चे इतने सारे रहते हैं पर कमेंट देने वाले हार्डली रहते हैं यार. मुझे तो समझ में नहीं आता बाकी लोगों को क्या हो जाता है. व्हाई दे डोंट वांट टू गिव एनी कमेंट. क्यों नहीं करते हो भाई? फटाफट करने का ना कमेंट्स. इसको तो हम लोग बहुत बढ़िया बना देंगे. एक रफ पेज लो, रफ पेज लो जरा, रफ पेज लो. रफ पेज पे मैं जो लिख के दे रहा हूँ वो लिख लो. ABC Limited grants 1,000 employee stock options on 1/4/2000 at ₹40. कितना ग्रांट किए हो? 40. Okay. So this is called as exercise price. When the market price was 160. Market price कितना छे? Intrinsic value 160. The fair value of the option. तो intrinsic value कितना हुआ? Sorry. 160 minus 40, 120. Market price is 160. Intrinsic value is the difference between market price and exercise price. Vesting period is 2.5 years and the maximum extreme period. मतलब ये start कब हुआ? 1/4/2000. 31st March 2001. 31st March 2002. 31st March 2003. 1 साल, 2 साल, 3 साल. सॉरी 2.5 साल है ना बस. 2.5 साल तक लिखना है बेटा. 30 सितंबर 2002. 2.5 years. The maximum was 300 options were lapsed on 1/5/2002. 1/5/2002 को lapse हुए. कितने options? You lapse with 300 options. So 316 options lapse हुए सर.
and and 600 options were exercised and 100 options were, तो 300 options lapse हुए. Okay, so you left with, उसके बाद बचे 700 ऑप्शंस. 700 ऑप्शन में से एक्सरसाइज्ड हुए एंड नॉट एक्सरसाइज्ड 600, 100. 700 ऑप्शंस बचे, लैप्स हुए ना 300. इधर इधर कितने थे? 1000 ऑप्शंस. इधर कितने थे? 1000 ऑप्शंस. इधर कितने बच गए? 700 ऑप्शंस. सो दिस इज कॉल्ड एज टाइमलाइन. सो यू हैव टू ड्रॉ दैट टाइमलाइन. यू हैव टू ड्रॉ दैट. ओके, आपको ये ऑप्शंस की लाइन ड्रॉ करनी है एवरी टाइम. Whenever you are doing these entries, you have to draw this timeline. Very simple. So I have drawn this timeline 31st March 2001, 31st March 2002, then 30 September 2002, जहां पे मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है. वेस्टिंग पीरियड में एक्सपेंसेस बुक करना है. You have to book your expenditure within the vesting period, and after that 600 options you are going to exercise, 100 options you are not going to exercise. It's very simple, sir. It's very simple. Yes. So इधर ऑप्शन 2 हो जाएगा. अभी मतलब वेस्टिंग पीरियड इज नॉट फिक्स. सॉरी, वेस्टिंग पीरियड इज फिक्स बट इट इज मोर देन 1 ईयर. मोर देन 1 ईयर है तो इसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट आएगा. सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट ईयर computation? How many columns are there? Year computation, cumulative amount already transferred to P&L, and final amount transferred to P&L now. Amount transferred to P&L now, or you can write only amount column. If you don't want to write amount transferred to P&L, year 31st March 1, how many options, beta? 1000 options into, you're paying from your pocket. How much? 120. So your expenses will be 120. See, this is the first year which is over out of 2.5 years. Then, beta, after one line, you can write 31st March 2002. Still 1000 options. 120. 2 years are over. Divided by 2.5. And last is 30th September. 700, 120. $48,000. 0 first year में 48,000. 96,000 is the cumulative amount, but you already पिछले साल का cumulative amount 48,000 था. So still 48,000. And here it is 84,000. You reverse 96,000. So 12,000. Cumulative amount is 48,000. You already transferred to P&L 0 because this is the first year. So 48,000 will be transferred to P&L now. 96,000 is a cumulative amount. You already transferred 48,000 in the last year. So 48,000 will be in the second year. And 48,000, 84,000 in the third year. And 96,000 is already transferred. So you left with the 12,000 balance. That is which generally reserve को transfer करेंगे. Reverse, because you provided excess amount. So September महीने में you provided excess amount. Okay, 700 बच्चे. Timeline के हिसाब से जाना है 1,700. You got to know this concept better now. समझ में आया क्या आप लोगों को? Say yes or no. समझा क्या नहीं समझा? समझा क्या नहीं समझा? नहीं समझा तो बोल दो.
क्या करना है, हजारों ऑप्शंस थे, एकदम सिंपल टेबल है ना, सिंपल टेबल है एकदम, कुछ है ही नहीं सर। ईयर, कंपटीशन, क्यूमुलेटिव अमाउंट, अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर टू पेंडल, अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर टू पेंडल के बाद अमाउंट ट्रांसफर टू पेंडल नाउ, 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, 31 मार्च के बाद 30 सितंबर 2002, खत्म हो गया सर। सर क्या सर, इतना सिंपल प्रॉब्लम भी हम लोग आराम से कर देंगे। मजा तो फाउंडेशन में आने वाला है अभी, इतने सारे बेचारे टॉपिक्स। आप शुक्र करोगे, बोलोगे फाउंडेशन पास हो गए सर हम लोग। हिमांशु यही टेक्निक से करना है। अभी मैं एंट्रीज बताता हूँ। सी द एंट्रीज, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इशू आउटस्टैंडिंग 48,000 फर्स्ट ईयर का, पी एंड एल टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस 31 मार्च 2001 ओवर, 31 मार्च 2002 एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस टू इशू आउटस्टैंडिंग, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस 31 मार्च 2003 इशू आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्या एंट्री होगी, माइनस की इशू आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व, और वही तो एंट्री करनी थी, इशू आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। एंड लास्ट में ऑलवेज थिंक फॉर वन शेयर सर, बैंक अकाउंटच्या डेबिटला 40 रुपीज 600 शेअर्स, 120 10 150, देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। खत्म हुआ रे, खत्म हुआ ना, क्या चाहिए अभी आपको, खत्म हो गया पूरा। ओके, एकदम बढ़िया सर, एकदम मस्त हो गया। इज आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व, खत्म। इज आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। लास्ट में भी कितने ऑप्शंस, 600 ऑप्शंस के बाद 100 ऑप्शंस बचे ना, 100 ऑप्शंस इंटू जो आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया 120 रुपीज, 600 ऑप्शन एक्सरसाइज, सो 40 रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट, इस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डोंट रिकॉर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस बिकॉज ऑलरेडी बुक फॉर द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एक्सपेंसेस बुक कर चुके हैं। सो हियर नाउ यू आर गोइंग टू रिवर्स दिस एंट्री, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एकदम इजी सर, एकदम इजी। Yes, now I got this logic. मज्जा आवी ना सर। इल्लू 3, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस कंडीशन का। जिसको डायग्राम समझ में आवे हो उसको सभी समझ में आवे हो। डायग्राम खत्म तो टेंशन नॉट। आज तो क्या 8:30 छोड़ना लगाओगे क्या? ब्रेक ब्रेक नहीं जोई तो एक काम कीजिए, थर्ड क्वेश्चन ब्रेक में देख लीजिए। 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 8:30 को हम लोग मिलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करके 8:45 8:50 को छोड़ देता हूँ, ठीक है? यस। क्या ब्रेक नहीं चाहिए और जल्दी छोड़ दूं? आप लोग डिसाइड करो। चलो 2 मिनट बताओ, ये क्वेश्चन साथ में कर ले, सो ब्रेक की जरूरत ही नहीं। हाँ जी बेटा, 48 ही किया ना ट्रांसफर, पी एंडल में 48 ही किया। हाँ जी।
इजी था ये भी, सिर्फ चित्र बना लो, अपने आप सब बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मत करो, थर्ड नहीं, थर्ड तो बहुत इजी है, थर्ड में क्या छुपा हुआ है। फोर्थ भी इजी है, फोर्थ मत करो। वी कैन कंटिन्यू, चलो। आ, हाँ जी, 6 नंबर का क्वेश्चन करो। हाँ जी, 6 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो, चलो देखते हैं कितने बच्चों को आता है। इट इज नॉट सर्विस कंडीशन। ठीक है, नो ब्रेक नो ब्रेक नो ब्रेक, सबने बोल दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नो ब्रेक। 6 नंबर का क्वेश्चन तो रीड करो। आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स फॉर योर कैलकुलेशन। 6 मिनट्स टाइम लगा देता हूँ। 6 मिनट्स के बाद मैं आपको, यस, रीड करो फटाफट फटाफट 6 नंबर का क्वेश्चन। करो, 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए 6 मिनट।
लास्ट 1 मिनट फटाफट कीजिए. ओवर आई होप. So this is a performance condition, not a service condition. I hope you are clear with this concept now. Employee compensation expenses. So there are two types of condition: service condition, performance condition. In case of service condition, your vesting period is fixed, and in case of performance condition, your vesting period is not fixed. And in performance condition, the question is that, sir, when we will achieve our target? So after achieving your target, you are going to issue share. ठीक है, एकदम इजी है. So illustration number 6 में आ जाइए बेटा जल्दी से अभी. Yes, now I am going to give you the answer part. यहाँ का चलो जल्दी से लिखे. Choice Limited grants 100 stock options to 1000 employees. तो number of options कितने हो गए? 1000 into 100, 1000 into 100. Yes, so you have 1 lakh options. 1 lakh options. Now what is the intrinsic value? Intrinsic value is rupees 20. So intrinsic value is rupees 20. Sorry. Its exercise price is 20, and what is your intrinsic value? Market price is 50, so intrinsic value is equal to 30. 30 is intrinsic value. Then options would be exercisable within a year. Wait, but this is a performance condition. So write down, if performance condition is there, vesting period is not fixed. Vesting period is not fixed. Vesting period ये fix नहीं होता है in case of performance condition. These options were vested at the end of the year 1. If company year 1 में, so what are your targets? Targets are year 1 में, year wise. So what is your target? Target is in year 1 you should achieve 16%. कितना achieve करना है आपको? 16% achieve करना है. 16% is your target. Target is 16%. Then in the second year, the average earning should be 13%. Target is average 13% चाहिए. Or it will be vested at the end of the third year. If 3 years का target is 10%. So 10% is the average target for years 1, 2, 3. 5,000 options were lapsed on 31st March 2002. So 5,000. So you left with बेटा diagram चित्र बना लो. चित्र बना लो बेटा जल्दी से. Yes. So on 1/4/2001, how many options are there? 1 lakh options, and accordingly we are going to cancel it. चलो, so पहले साल में आपने अचीव किया क्या टारगेट? सर नो सर, वी हैव नॉट अचीव्ड द टारगेट इन द फर्स्ट ईयर. पहले अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में. ठीक है, सो यू आर नाउ परफॉर्मेंस विल बी इन द सेकंड ईयर. सो नाउ योर वेस्टिंग पीरियड विल बी सेकंड ईयर. सो यहाँ पे अचीव हुआ, नो नॉट अचीव्ड. सेकंड ईयर में 14 + 10 डिवाइड बाय 2, 12%. And what is the target? 13%. Again not achieved. And in third year 16 plus 14 plus 10 plus 7. 14 plus 10 plus 7 divided by 3, and it is 10.33. Yes, I achieved the target in the third year. So but a performance condition. Now here, understand, in the first year 1 lakh options are there. You lapsed with how many options? 5,000. So 5,000 options were lapsed. 9,500 options will be there. After 9,500, again 4,000 options were lapsed. So 9,500 minus 4,000 will be 9,500 minus 4,000. So नहीं, 1 lakh में से यहाँ पे 95,000 थे. 95,000 options on 31st March 2002. On 31st March 2003, you lapsed with 95,000 minus कितने हो गए अभी? 4,000 lapsed. मतलब 91,000 ऑप्शन से लेफ्ट हुए आप लोग यहाँ पे. So 91,000, and now again 3,500 options were lapsed.
ऑन 31 मार्च 2004 कितने ऑप्शंस हैं? 91,000 माइनस 3,500. ओके, 87,500. After 87,500, beta, how many options were exercised by employees? 850. 850 matlab 850 employees into 1,000 options, 85,000 options, and 2,500 options were not exercised, which were transferred to जनरल रिजर्व. कहां पे ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट नाउ. यस, ड्रॉ दिस चित्र. फटाफट डायग्राम को ड्रॉ कीजिए. 1,95,000, 91,000, 87,500, 85,000 एंड 2,500. व्हाट आर योर कॉलम्स? कॉलम्स क्या क्या है? ईयर, कॉम्पिटिशन, अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर्ड और क्यूमुलेटिव अमाउंट पहले, क्यूमुलेटिव अमाउंट, अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर्ड to P&L and only amount. चलो चित्र बना लो फटाफट. Year, competition, cumulative amount, amount already transferred to P&L and amount. चलो, first year 31st March 2002. 31st March 2002. How many options were there? 95,000 options into pocket में से कितना जाएगा? So your intrinsic value is rupees 30. 30 is intrinsic value, and here students are making mistake. Don't multiply by 1/3 because in first year you are unaware about how many years you are going to perform your target. So how much time it will take to perform your target. So in the first year you should be optimistic. Here you have to understand that you will consider only second year as a vesting period. मेरा ये अटेम्प्ट में नहीं निकला तो कोई बोलता है क्या थर्ड अटेम्प्ट में निकलेगा करके? नहीं नहीं, आपको क्या याद रखना है? यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मैं ये अटेम्प्ट में नहीं मिला तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में होगा. ओके, सो आशावादी रहना है आपको. 95,000 इंटू 30 इंटू यहाँ पे परफॉर्मेंस भी ऐसा ही होगा. आपको ये साल में नहीं तो आपका नेक्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस आने वाला है. सो 95,000 इंटू 30 इंटू 1/2. 1/2 यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करेगा. दिस इज एक्सीडेंटल एरिया. यहाँ पे आपका एक्सीडेंट पक्का होने वाला है. ये जोन से बच के रहियो. सो यहाँ पे 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से. इट्स वेरी सिंपल. 95,000 इंटू 30 इंटू 1/2. यस सर, अंडरस्टूड. 95,000 into 30 divided by 2, 14,25,000. And what is going to happen, sir? Amount already transferred to P&L 0 है तो 14,25,000. सेकंड ईयर में क्या होने वाला है सर? सेकंड ईयर में हमें समझ में आया कि हमने सेकंड ईयर में भी बर्बादी कर दी, परफॉर्मेंस नहीं दिया. सो 30 तो सेकंड ईयर के बाद यू विल अंडरस्टैंड 2/3. इधर 1/2 नहीं होने वाला है, इधर 2/3 होने वाला है. 91,000 into 30 into 2/3. So your answer will be 18,20,000. 18,20,000 is the answer, and out of that you already transferred to P&L 14,25,000. So now you left with कितना amount है? You left with 3,95,000. So 3,95,000 will be transferred to P&L. लास्ट में क्या होएगा सर? Okay, last year में you are with 87,500 options. चित्र देखोगे तो पूरा समझेगा. 3/3, 87,500 into 30, 26,25,000. Out of that you showed 18,20,000 already, sir. 18,20,000 तो बचा कितना? 8,05,000 आपका बच गया है. And we are here finished with the concept of परफॉर्मेंस कंडीशन. परफॉर्मेंस कंडीशन का ये पहला क्वेश्चन था. आई होप यू अंडरस्टूड इट. 14,25,000 एंड नाउ योर लाइफ विल बी वेरी सिंपल आफ्टर ड्रॉइंग दिस डायग्राम. चित्र बनाने के बाद सिर्फ मिस्टेक कहां पे होगी? हियर इज मिस्टेक. 1/2 लेना है, नॉट 1/3. 1/2 क्योंकि यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर टारगेट्स. सो 1/2 आपको कंसीडर करना है. डोंट कंसीडर 1/3. हियर यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक. सो हियर वी हैव फिनिश विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस कंडीशन. एनी डिफिकल्टी यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में. आप अपना हाथ चलाते रहिए. थर्ड ईयर में टारगेट अचीव होने वाला है सर. यस, स्वाति को तो समझ में आया और आपको भी समझाए तो जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. यस सर, समझा है या नहीं समझा है? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड बेटा? साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन फटाफट. यू गॉट द कॉन्सेप्ट? तो देखो भाइयों और बहनों, मैं पहले ही बता देता हूं,
95,000 ऑप्शन, शुरुआत में 1 लाख ऑप्शन थे, 1 लाख ऑप्शन की एंट्री नहीं होगी। 95,000 ऑप्शन बच गए, 5,000 रुपए लैप्स हो गए, 5,000 ऑप्शन, तो 30 रुपीज से। पर पहले साल में आपको पता नहीं था। पहले साल में क्या पता नहीं था, एक बार हिंदी में बता रहा हूं पूरा का पूरा। पहले साल में हमें पता नहीं था कि हमारा टारगेट 3rd ईयर में अचीव होने वाला है। हमें नहीं पता था, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी रहने वाले कि ये साल नहीं तो सर नेक्स्ट ईयर। सो 1/2 लेना जरूरी है, यहाँ पे 1/2 लेना जरूरी है। यस, तो यही आपका एक्सीडेंटल एरिया था। और हमारे हिमांशु पाठक ने क्या बताया है, यस सर एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा थिंकिंग करके डिवाइड नहीं करे था, इसलिए होल अमाउंट को राइट कर दिया, और बट अभी समझ में आया। बहुत बढ़िया हिमांशु, इसीलिए खुद से ट्राई करना बनता है बॉस। आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा ये सभी क्वेश्चंस को। यस, आई स्टिक टू 1/2 एंड नाउ आई गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ 1/2। वेरी गुड सुनील कुमार। दिव्या जी को भी समझ में आ गया है, सिंह को भी समझ में आ गया, एंड नाउ स्वाति भी बोल रही है डन सर। यस, एकदम इजी है, एकदम इजी। So your entry will be employee compensation expense account debit to is outstanding 14,25,000, then P&L account debit to employee compensation expense account। सब पहला एंट्री भी समझ में आ गया, दूसरा एंट्री भी समझ में आ गया, 395 को 8,05,000। and now when you are going to exercise only 85,000 and 2,500 options multiplied by जो आपके जेब से जाने वाला है, आपके जेब से कितना जाने वाला है 30, it will be transferred to general reserve। I hope you understood it। एक शेयर का सोचो, 1 शेयर बैंक अकाउंट डेबिट 20, then cancel 25,50,000 to equity share capital, always at 10 rupees face value sir, and to security premium। yes, 2,500 लैब्स दर्शन छा गया बेटा। 2,500 शेयर 30 रुपीज का हिसाब से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। और क्या चाहिए आपको? कॉन्सेप्ट्स आर ओवर। 833 में छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं, लास्ट का क्वेश्चन है इलू 7 जो फेयर वैल्यू से है। बच्चों को साइज देख के प्रॉब्लम का डर लगता है, पर डरना मना है जब तक संकेत सर साथ में है। 7 क्वेश्चन देख लेते, 7 क्वेश्चन। मजा आ गया बच्चों? ईसॉप फुल मार्क्स देके जाएगा ना? जेन्युइनली बताओ। ईसॉप तो फुल मार्क्स देगा सर, 1 मार्क भी नहीं कटेगा ईसॉप का। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर, डरियो मत। अरे 17 मिनट तक क्या कर रहे हो सर इतना? टिक्की जा बेटा जा। टिक्की को भेज दो रे। और हमारे श्याम दादाजी मुझे चाय लाके देते हुए, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड। दर्शन आगे के सभी चैप्टर स्कोरिंग है, बिलीव मी। ऐसे कुछ फंडाज है ना, बताऊंगा तो पूरा ध्यान में रह जाएगा। नाउ डायग्राम नहीं देगी इंस्टीट्यूट आपको, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, थोड़ा तो हमारी भी रोजी रोटी बनने दो। सब कुछ इजी करके दिया स्टडी मटेरियल में तो कैसे चलेगा भाई? नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर एक पैटर्न है, मैं वो इजी करने की कोशिश करता हूँ। Whenever I start with this, any chapter, for example, amalgamation, internal reconstruction, I give such a technique that students can do it in any way. Okay, so don't worry, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। स्कोरिंग चैप्टर है, अगले चैप्टर्स भी बहुत स्कोरिंग है। सर जी 7 नंबर पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, जिसको हम लोग बोलेंगे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, फेयर वैल्यू ऑप्शन है। जाइए देखिए, करिए कंप्लीट। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। पढ़िए, 6 मिनट देता हूं आपको, 6 मिनट। सिक्स मिनट से आपके पास। ये 6 मिनट में मैं नहीं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये 6 मिनट आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करोगे।
चलो करो जल्दी जल्दी। सर्विस ऑफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग ऑल। लेमन टी है, डोंट वरी। हो गया बेटा, डरियो मत। 1 मिनट बचा है। गॉट इट। अरे वाह रे वाह शेरनी। दर्शन वेरी गुड बेटा। शेरनी नहीं है, स्वाति थी मुझे लगा। दर्शन को आया, शेरना है। वहां मीठा बनाता है ना। सुबह की नॉर्मली नहीं पीता चाय, पर आवाज की वजह से। वेरी गुड सुनील भाव। छा गया सुनील भाव। एक नंबर बेटा। मैं पहले ही बोला था जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा छोटा आंसर है। क्या बोला था मैं आपको? जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। एकदम बढ़िया बेटा। एट द बिगिनिंग ऑफ द, अरे कौन गया रे, गायब हुआ। ऐसा कैसा निकलता है तू? रुकना, लास्ट क्वेश्चन है, रुको, बच्चों को जाना है अभी। आज जल्दी छोड़ रहे, कभी नहीं तो संकेत सर।
हाँ जी, संडे के दिन 7 से 9 सेशन लेके छोड़ दिया आज। हाँ, करो कंप्लीट, करो कंप्लीट। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वन एन एंटरप्राइज ग्रांट्स 10,000 स्टॉक ऑप्शंस टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव। सर सीनियर एग्जीक्यूटिव को 10,000 ऑप्शंस दे दिए, कंडीशन अपॉन द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटरप्राइज अंटिल द ईयर एंड 3। अरे बेटा सर्विस कंडीशन छे, बिजनेस में રહેવાનું, મज्जा કરવાની, सर्विस कंडीशन कितना साल की है? 3 इयर्स का, 3 इयर्स का सर्विस कंडीशन है। द एक्सरसाइज प्राइस इज ₹40। ए पे एक्सरसाइज प्राइस इज 40। However, the exercise price drops to 30. Wait. Exercise price drops to 30. Bhai, you have to pay me 30 if earnings are increased by at least 10% over 3 years. हाँ, यदि अर्निंग अच्छा किया तो यू डोंट हैव टू पे 40। सो दिस इज द कंडीशनल्स, कंडीशंस मतलब ये रोटेशन में है कि 40 रुपए का कंडीशन देना है, 30 रुपीज का आपका क्या होएगा, 30 रुपीज से मतलब 40 का 30 हो जाएगा। अर्निंग्स बढ़ाओ पैसा कम लो, अर्निंग्स बढ़ाओ पैसा कम दो। ओके, एक्सरसाइज प्राइस कम दो, 30 रुपए दो। On the grant date, the exercise price estimated the fair value of the stock option with an exercise price of ₹30 is ₹16 per option. If exercise price is 40, the enterprise calculate fair value ₹12. So ज्यादा एक्सरसाइज प्राइस आपके जेब से कम जाएगा ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू लेस और फेयर वैल्यू भी लेस। ये लॉजिक है। इफ मोर एक्सरसाइज प्राइस, लेस इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। एंड 30 रुपीज लोअर एक्सरसाइज प्राइस मतलब हाई फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, सो 16 रुपया होगा ना फेयर वैल्यू। ड्यूरिंग द ईयर द अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय 12%। कितना करना था? 12। द एंटरप्राइज continue to increase it the rate over the next 2 years. The enterprise therefore expects the earning target will be achieved and hence the stock option will be exercise price is ₹30। पहले साल को उनको क्या लगेगा? 30 रुपीज के हम लोग अचीव कर लेंगे। अरे पहला साल बहुत बढ़िया गया ना, 10% का एवरेज था। कितना 10% का एवरेज था? बट यू अचीव 12%। सो अभी मुझे बताओ पहले साल में ऑप्शन कितना लेंगे? 16 रुपया, 16 रुपीज। ओके, सो यू विल कंसिडर 60 रुपीज। वाई? बिकॉज यू विल गो विथ दी 30 रुपीज का वैल्यूएशन। सो एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा? एक्सरसाइज प्राइस ₹30, तो फेयर वैल्यू कितनी हो जाएंगी? रुपीज 12, सॉरी 16, ₹16। पहले साल में बहुत बढ़िया गया सर, पहला साल छा गए थे हम लोग फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में क्या हुआ? सेकंड ईयर में इट इज इंक्रीज, ओ माय गॉड 13%, 12% नहीं 13% और 1% ऊपर। मतलब अभी तो एक्सरसाइज कंफर्म होने को आया। 30 रुपीज जेब से कितना जाएगा? ₹16। बट थर्ड ईयर में वांदे हुए, 3% से टारगेट अचीव किया। टाइट टाइप फिश। सो 12%, 13% प्लस 3%। ओ हो 12 अच्छा खासा सपना बताया, नीचे आ गए। डिवाइड बाय 3, ओनली 9.33। एवरेज कितना? 9.33। तो सो डायरेक्ट आसमान से जमीन पे आ गई। तो यहां पे एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा 40 एंड फेयर वैल्यू हो जाएगा 12। फेयर वैल्यू 12। पहले साल में 16, दूसरे साल में 16, तीसरे साल में 12। क्यूमुलेटिव। अपना चार्ट बनाओ सर, ये नहीं बढ़िया चार्ट, अपना चार्ट है। अपना चार्ट कहाँ गया सर? अपना चार्ट। सो तीसरे क्वेश्चन का आंसर 10,000 इंटू 16, 10,000 इंटू 16, 2/3 एंड देन 1 3/3। सर ये आंसर है अपना, अपना आंसर ये है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लगे तो। ये 6 अपनो आंसर। बढ़िया, मजा आया बेटा। सो पहले साल में अचीव किया, आपको लगा लाइफ झिंगा लाला, सो हुआ नहीं, 16 रुपए से गए। फिर 16 रुपीज, दूसरे साल में भी लाइफ अच्छा था,
तीसरे साल में जमीन पे पटक दिया सर, अचीव ही नहीं हो पाया टारगेट, एवरेज हो गया वाट, और इसके वजह से हो गई फेयर वैल्यू 12। अच्छा खासा चल रहा था तो बहुत बढ़िया। यस सुनील जी, आई नो दैट। एंड गनगथारा, yes, your answer is absolutely correct. Absolutely correct. कनक तारा जी, वेरी गुड। सो मस्त क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन नंबर, अभी आप लोगों को फेयर वैल्यू ऑप्शन से जाने वाले 2-3 क्वेश्चन चाहिए, डरो मत। फेयर वैल्यू ऑप्शन से जाने वाले 2-3 क्वेश्चन है। 4 नंबर का भी एक फोटो निकाल लीजिए। 12-12 ये भी फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। सो 4 नंबर का क्वेश्चन ये है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर का चित्र बना लो। 5 नंबर का ये होमवर्क है, जस्ट चेक इट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, आई विल टेल यू इट इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूंगा ट्यूसडे को। नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई फॉर पुणे टुमारो इवनिंग फ्रॉम कोलकाता। सो मैं अभी कोलकाता से पुणे फ्लाई करने वाला हूँ कल। तो हम लोग अभी मिलेंगे मॉर्निंग में। कल रात को मेरी फ्लाइट रहने वाली है, सो मॉर्निंग में हम लोग मिलेगा। तो ट्यूसडे को यस, सेशन विल बी देयर, एकदम मस्त सेशन, बायबॅक चाय, बायबॅक। ओके, आता लेक्चरला बंकिंग नाही, एक भी लेक्चर छोड़ने का नहीं, डोंट मिस अ सिंगल सेशन। ओके ओके गाइस, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए लेक्चर को और आईसीआई के साथ जुड़े रहिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, अभी कुछ भी टेंशन मत लो, फटाफट कमेंट करते रहो। और एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिशन लाना है दिस टाइम, एडवांस में एग्जामिशन लाना है। दोज हु आर वाचिंग बट दोज हु आर नॉट गेटिंग क्लियर इन द एग्जाम, डोंट वरी बेटा, एडवांस को 100 पेजेस की बुक मेंटेन करो। संडे टू संडे रिवाइज करो, संडे टू संडे रिवाइज करो, यू विल गेट द सक्सेस, डोंट वरी। क्यों बच्चा फेल होता है? क्योंकि रिवीजन नहीं करता सर, लैकिंग ऑफ द रिवीजन। ओके, उसके वजह से लैक हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। और मुझे पता है अपने बच्चे संडे को पूरा रिवीजन करने वाले। यस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मैं तो सोने वाला हूँ 1 घंटा। बाय।